ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੋ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਸ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਤੋ ਇਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕੈਂਪ ਪਿੰਡਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਓ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਕੋ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ 1430 ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਿਖਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਖਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਉਸ ਲਿਖਾਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਿਖਾਰੀ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਗਿਆਨ ਔਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
पर जदों असी पावन ग्रंथ साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी के बारे गल करते हैं ना, तो सतगुरु जी कहते हैं कि ए संसार के लोगों, इस पावन बाणी के अंदर कोई दुनियावी ज्ञान दर्ज नहीं है। इस पावन बाणी के अंदर कोई संसार दियाँ किताबां दियाँ गल्लां दर्ज नहीं है। इस पावन बाणी के अंदर उस निरंकार अकाल पुरख परमात्मा करते की बाणी है। ये बाणी जिसनों असीं आम आपां संगत जी सरवण करते हैं ना, धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। इस पावन बाणी की पंक्ति तो भाव यह है कि ये जिहड़ी बाणी है ये किसी मनुख की बाणी नहीं है। इवन जेकर धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज जी ने बाणी नूं जदों लिखिया है ना, तो साहब सच्चे पातशाह जी ने ये नहीं आख्या कि ये बाणी मैं लिख रहा। इतों तक सतगुरु जी ने पावन इस बाणी दे विच सानूं उदाहरणां सहित समझा दिता, हवाले दे दिते। एक सब तो वड्डी साडे वास्ते जिहड़ी भाई लालो जी का नाम वरत के साहब सच्चे पातशाह जी ने पावन पंक्ति इस बाणी के अंदर दर्ज कर दी है। सच्चे पातशाह जी बख्शिश करते ने, जैसी मैं आवै खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। ऐ लालो जी, जिहो जी बाणी मेरे निरंकार अकाल पुरख करते दे कोलों मैनू आ रही है, मैं उस तरह की बाणी का ज्ञान जिहड़ा संसार के लोगों को दे रहा। जैसी मैं आवै खसम की बाणी, जिवें मैनू मेरे खसम मेरे मालक मेरे परमात्मा की बाणी आउंदी है ना, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। ये लालो जी, तुसी उस तरह का ज्ञान प्राप्त करना जिस तरह का ज्ञान मैनू मेरा निरंकार अकाल पुरख परमात्मा भेज रहे। होर सतगुरु जी की इस पावन गुरबाणी के अंदरों सानू उदाहरणां मिल जांदियां। साहब सच्चे पातशाह जी बचन करते हैं, सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो, हर करता आप मुँह कढ़ाए। साहब कहते हैं कि साडी बाणी नहीं है, हर करता उस निरंकार परमात्मा के बारे सतगुरु जी ने बख्शिश कर दी है कि वह अकाल पुरख परमात्मा करता साडे मुखार बिंद के विचों ये पावन बाणी उचारण करवा रहे हैं। इस करके जदों असी इस बाणी के अगे सीस झुकाउंदे हां ना, ते ये ना सोचिया करो कि केवल धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नूं सीस झुक रहे। ये ना सोचिया करिए कि केवल भगत कबीर साहब जी, भगत फरीद साहब जी, भगत नामदेव जी जां पट साहबान ने जां गुरु के सिख ने उन्हां नूं सिर झुकदा है। बल्कि जदों असीं इस पावन बाणी के अगे सीस झुकाउंदे हां ते असीं उस निरंकार अकाल पुरख परमात्मा करते दे अगे सीस झुका रहे हुंदे। और उस करते की गल इस बाणी के अंदर सतगुरु साहब जी ने आप की है। साहब जी ने जिन्ने भी गुरु के प्यारियां की बाणी इस पावन ग्रंथ के अंदर दर्ज है ना, किसी भी गुरु के सिख ने जां गुरु साहबान ने ये नहीं आख्या कि ये बाणी मैं उचारण करदा, बल्कि उन्होंने ये बचन साझे किए कि धुर की बाणी आई। ये सारी बाणी वो धुर की बाणी आई है, परमात्मा के घर दे विचों बाणी आई है। और इस करके साहब सच्चे पातशाह जी कहते हैं, ऐ गुरु क्या सिखा, इस बाणी दे अगे तू जैसी भावना करके अरदास करेगा, जैसे मन दे विच विचार लैके इस बाणी दे अगे अरदास करेगा, जैसी तू अरदास करके इस बाणी दे कोलों फल प्राप्त करने की इच्छा रखदा है, जेकर तेरी भावना होवे, जेकर तेरी अरदास सच्चे मनों निकली होवेगी, तो इस बाणी दे विचों हर एक खजाना वो तेरी झोली दे विच जरूर पै जावेगा। भाई साहब भाई गुरदास साहब जी ने बड़िया सुंदर उदाहरण दे के कवित सवैयां दे अंदर समझाउणा कीता है। साहब कहते हैं कि वेखो, जैसे तो सकल निध पूर्ण समुंदर विखै, हंस मर जीवा निश्चय प्रसाद पावई। कहते जिमें समुंदर दे विच बड़िया बेशकीमती धानतां ने, पदार्थ ने। अजकल आपां जाणदे हैं क्योंकि मीडिया का युग है, टैक्नोलॉजी का युग है, असीं मोबाइल फोन ते हर एक चीज़ नूं सर्च करके उस वेले वेख सकते हैं कि कित्थों की चीज़ प्राप्त हो रही है। तो कहते कि जिवें समुंदर दे विच बहुत कुछ है, विग्यानी खोज करन वाले जिहड़े वो चंगे तो चंगा वधिया तो वधिया पदार्थ जिहड़ा हीरे मोती सोना चांदी तेल आदिक समुंदर दे विचों खोद के बाहर कढदे। तो कहते कि उस समुंदर दे अंदर बहुत कुछ मौजूद है, पर हर एक मनुख प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे तो सकल निध पूर्ण समुंदर विखै। भाई गुरदास साहब जी बख्शिश करते हैं, जिवें एक समुंदर खजानियां दे नाल भरिया पिया, प्राप्त कौन करता है? हंस मर जीवा निश्चय प्रसाद पावे। कहन लगे एक हंस जिस दे बारे सतगुरु जी ने गुरबाणी दे विच बचन कीता है
कि सरवर अंदर हीरा मोती सो हंसां का खाना। हंस केवल हीरे मोतियां की खुराक जिहड़ी वो ग्रहण करते हैं। तो सतगुरु जी कहते हैं कि उन्हां हीरियां मोतियां नूं प्राप्त करने वाला जिहड़ा हंस है वो सरोवर के समुंदर के कंढे के उपर बैठ के उस समुंदर के विचों खोज करके छाणबीन करके अपनी खुराक जिहड़ी हीरे मोती वो बाहर कढ लैंदा है और उन्हां दा सेवन करदा है। दूसरा जिहड़ा मरजीवड़ा जिस दे वास्ते भाई साहब जी ने शब्द वरते है, मरजीवड़ा किस दे प्रथाए वरते है, वो मरजीवड़ा जिहड़ा अपनी जान नूं हथेली दे उपर रख के समुंदर दे विच डुबकी लगाउंदा है, समुंदर की गहराई दे विच जांदा है, वो अपनी जान नूं दाਅ ते लगा के जदों समुंदर की गहराई दे विच उतरदा है, जिन्नी डुंगियाई दे विच वो जावेगा उन्ने कीमती पदार्थ उस मनुख नूं प्राप्त हो जाते हैं। जैसे तो सकल निध पूर्ण समुंदर विखै, हंस मर जीवा निश्चय प्रसाद पावई, जैसे पर्बत हीरा मानक पारस सिद्ध, खन वारा खन जग विखै प्रगटावे। कहंदे ने जिवें ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਾਰਸ ਪੱਥਰ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨਾ ਖੋਦਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਖੋਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਕੀਮਤੀ ਸੋਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕੀਮਤੀ ਪਾਰਸ ਵਰਗੇ ਪੱਥਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। जैसे परबत हीरा मानक पारस सिद्ध, खन वारा खन जग बिरखै प्रगटावई। वो खाना नूं खोदण वाला जिहड़ा मनुख है वो पहाड़ां दे विचों खाना नूं खोद के कीमती पदार्थ संसार दे सामने प्रगट कर दिंदा है। जैसे बन बिखे मलियागर सौदा कपूर, सोध कै सुबासी सुबास बह हसावई। कह लगे एक चंदन की सुगंधी नूं जानण वाला प्रवीण जिहड़ा मनुख है वो जंगल दे विच जांदा है, जाके चंदन के पौधे की पछाण करता है। चंदन के पौधे की पछाण करन तो बाद उस चंदन की लकड़ी नूं संसार के सामने लियाण के प्रगट कर दिंदा है। कहण तो भाव इन्हां तिन्नां एग्जाम्पल्स दे विच, इन्हां तिन्नां उदाहरणां दे अंदर भाई गुरदास साहब सच्चे पातशाह जी ने बख्शिश कीती है। जिहड़ा मनुख समुंदर दे विचों खोज करदा है वो कीमती चीज़ां की प्राप्ति कर लैंदा है। जिहड़ा पहाड़ां दे विचों खोज करदा है वो कीमती मोतियां की प्राप्ति कर लैंदा है। जिहड़ा जंगल दे विच खोज करन दी कोशिश करदा, यतन करदा है, वो खुशबूदार चंदन के पौदियां की जिहड़ी वो प्राप्ति कर लैंदा है। ते चौथी पंक्ति दे अंदर भाई गुरदास साहब सच्चे पातशाह बख्शिश करदे है, तैसे गुरबाणी विखै सकल पदार्थ है, जोई जोई खोजै सोई सोई निपजावई। साहब जी कहते हैं कि ऐ मनुख इस तरह इस बाणी के अंदर भी बेशकीमती पदार्थ छुपे हुए है। बहुत सारिया बख्शिशां ऐ सिक्खा इस बाणी के अंदर मौजूद ने। केवल तेनों अपने मन के अंदर अपनी जिहड़ी वो खोजी बिरती धारण करनी पैगी। इसे करके सतगुरु जी बाणी के अंदर बख्शिश करते हैं ना, बंदे खोज दिल हर रोज़। असी रोज़ाना जिथे अपने दिल नूं खोजना है, अपने अंदर नूं वेखना है, उत्थे साहिब जी ने इशारा किया, ऐ गुरु क्या सिखा तू इस बाणी नूं भी खोजना है। अज हुंदा की है, असी केवल गुरुद्वारे आण के मत्था टेकण तक सीमित रह जाने आ। साडे मनां दे अंदर भावें कि असी बाणी नूं सुणन दा भी बहुत वड्डा महात्म है, पर उहदे नाल नाल सतगुरु जी कहते ने, ऐ गुरु क्या सिखा तू अपनी रसना दे नाल हत्थां विच गुड़का साहिब लैके आप भी बाणी पढ़न की कोशिश कर, आप भी असी बाणी पढ़न का यतन करिया करिए। क्योंकि जदों असी बाणी नूं पढ़ांगे, बाणी दीयां पावन पंक्तियां जदों साडे सामने आउणगीआं, साडे मन दे अंदर सवाल पैदा होवेगा। जदों असी पढ़ांगे, सोचै सोच ना होवई, जे सोची लख वार, चुपै चुप ना होवई, जे लाए रहां लिवतार। जदों असी ये पावन पंक्तियां पढ़ांगे तो मन दे विच सवाल आवेगा कि सतगुरु जी किहड़ी सुचमता की गल करदे, सतगुरु जी किहड़े चुप रहण की गल करदे। जदों बचन पढ़ांगे, भरीऐ हथ पैर तन देह, पानी धोतै उतर सखेह, साडे मन दे विच सवाल आवेगा कि सतगुरु जी किहड़े हत्थां पैरां दी मैल दूर करन की गल करदे। किहड़े सतगुरु जी ने ऐसियां बख्शिशां कीतियां ने। जदों असी आप बाणी पढ़ांगे, साडे मन दे अंदर विचार बनेगी। जदों विचार बनेगी फिर असी लभण दा यतन करांगे, खोजण दा यतन करांगे, ते ज्यों-ज्यों फिर असी नूं बाणी नूं खोजदे जावांगे, बाणी नूं ढूंढदे जावांगे, सानूं उहदे विचों होर भी बेशकीमती पदार्थ जिहड़े वो प्राप्त हुंदे जाणगे। मत विच रतन
जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी। ऐ गुरु क्या सिखा, जेकर तू अपने गुरु की एक सिक्ख्या नूं धारण कर लवें, बाणी नूं पढ़ के उहदे विचों सिक्ख्या ग्रहण कर लवें, ते बेशकीमती मोती पदार्थ हीरे ਜਿਹੜੇ ਉਹ तेरी मत ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। गुरु की मत ऐ सिखा फिर तेरे मत ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ। क्योंकि गुरु के सिख का जोड़ा जीवन है ना संगत जी, असी किसी दूसरे दे नाल ढुका नहीं सकते। भगत कबीर साहब जी नूं किसी ने पूछया कि गुरु का जोड़ा सिख है, उदों गुरु के सिख की गल तो घट हुंदी सी, दास की सेवक की गल ज़्यादा होया करती सी कि गुरु का दास बनना किहो जिहा बन सकता है, गुरु का दास किहो जिहा है, गुरु का जन किहो जिहा हो सकता है, गुरु का सेवक किहो जिहा हो सकता है। तो भगत कबीर साहब जी ने अपने मन के अंदर इस सवाल की विचार की है। फिर विचार करदियां करदियां सोचन लगे और एक पावन पंक्ति उचारण की। कह लगे, कबीर रोड़ा होए रहो बाट का, तज मन का अभिमान, ऐसा कोई दास होए ताहे मिलै भगवान। कह लगे, जेकर परमात्मा का असीं दास बनना है, परमात्मा का सेवक बनना है ना, तो सानू अपने जीवन के अंदर ऐसी निमरता धारण कर लैनी चाहिए है जिवें एक रोड़े के अंदर हुंदी है। मन दे विच भगत साहब जी ये सोचते हैं जिवें रोड़े के अंदर निमरता। हुण रोड़े की निमरता की है, रोड़ा हमेशा जमीन ते रहिंदा है, पैरां दे विच रहिंदा है। कह लगे कि साडे सिख दे जीवन के अंदर जां परमात्मा के दास के जीवन की निमरता ऐसी होवे कि जिवें रोड़ा हमेशा पैरां दे विच रहिंदा, इहो जी निमरता एक गुरु के सिख के जीवन के विच होनी चाहिए है। फिर वो अपने आप को गुरु का सेवक जां गुरु का दास अखवा सकता है। जदों ये विचार कीती, फिर मन के अंदर फिर अगला सवाल पैदा होया। कह लगे कि जेकर असीं अपने जीवन के अंदर रोड़े वर्गी निमरता धारण कर लवांगे तो रोड़े दे विच एक सब तो वड्डा अवगुण है। कह लगे, रोड़े दे विच हुण अवगुण किहड़ा है? फिर भगत साहब जी ने पावन पंक्ति उचारण की है, बख्शिश करते ने, कबीर रोड़ा हुआ तां क्या भया, पंथी को दुख दे, ऐसा तेरा दास है ज्यों धरनी में खेह। कह लगे, नहीं, रोड़े वर्गी निमरता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रोड़े दे विच एक सब तो वड्डा अवगुण है। जदों मुसाफिर जदों कोई राही तुरिया जांदा ते रोड़ा उसके पैरां दे विच ठेडे लगण दा काम करदा, तकलीफ दिंदा है। इस करके रोड़े वर्गी निमरता नहीं होनी चाहिए। निमरता कैसी होवे, मिट्टी वर्गी खे वर्गी निमरता होनी चाहिए है, जिहड़ी किसी नूं ठेडा नहीं लाउंदी, पैरां दे विच रहिंदी है। हुण ये जिथे बाणी दीयां पावन पंक्तियां नूं असीं विचारदे हां ना संगत जी, उत्थे साडे मनां दे अंदर भी इसदी विचार नाल नाल चलनी चाहिदी है। जदों असीं बाणी पढ़दे हां ना ते साडे मन दे अंदर भी ये विचार चलनी चाहिदी है। वेखो, भगत साहब जी एक पंक्ति उचारण करके फिर उस तों होर अगे जाण दी कोशिश करदे आ, उस नूं होर खोजण दी कोशिश करदे आ, उहदे विचों होर लभण दी कोशिश करदे आ। हुण जदों भगत साहब जी इत्थों तक पहुँचे कि खे वर्गी निमरता सिख के जीवन दे विच होवे, परमात्मा के दास के जीवन दे विच होवे, ते फिर मन के अंदर होर खोज की है, होर विचारे है, होर अगे सवाल चलिया गया। कह लगे, जेकर खे वर्गी निमरता धारण कर ली, ठीक है, पैरां दे विच ते रहिंदी है, पर उस दे विच भी एक सब तो वड्डा अवगुण है। अवगुण किहड़ा है? कह लगे, कबीर खे हुई तो तां क्या भया, जो उड लागै अंग, हर जन ऐसा चाहिए ज्यों पानी सरबंग। कह लगे, ऐ मनुख, ऐ गुरु के सिख, ऐ परमात्मा दे दास, जेकर तू मन के अंदर खे वर्गी निमरता धारण कर लवें, मिट्टी वर्गी निमरता धारण कर लवें, तो उसका भी एक सब तो वड्डा अवगुण है, उस दे विच भी एक सब तो वड्डी बुराई है। वो बुराई ये है कि जदों हवा चलती है तो वह मिट्टी उड़ के मुसाफिरां दे जां राहियां दे शरीर दे उपर लगदी है, तन दे उपर लगदी है, कपड़े दे उपर लगदी है और मैलियां कर दिंदी है, मलीनता का कारण बन जाती है। तो कहते फिर सेवक किहो जिहा होवे, हर जन ऐसा चाहिए ज्यों पानी सरबंग, जिवें दा पानी हुंदा है, पानी दे वर्गी निमरता सिख दे जीवन दे विच होवे। हुण पानी दा गुण किहड़ा है? पानी दा गुण यह है कि तुसीं जिथे मर्जी पानी नूं डोल दिओ, हमेशा नीवें पासे जाएगा। भावें थोड़ी जी आपां जिवें घरां दे विच फर्शां पाउणे आ ते आपां मिस्त्री नूं आखदे ना कि जीरो लैवल रखना है। जीरो लैवल का भाव जिसका रेड़ किसी पासे नहीं है,
पर जेकर आपां दरवाजे वाले पासे 1% उस दी निवाण रख देवांगे तो कमरे दे विच जिथे भी पानी डोलांगे वो फिर जिहड़े पासे निवाण होवेगी उधर नूं भजेगा। आम असी धरती दे उपर किसी वेले लैवल वेखना होवे ते असी पानी दे नाल लैवल वेखदे हां, जिहड़े पासे नीवापन होवेगा पानी दौड़ के उस पासे चलिया जांदा है, सानूं पता लग जांदा कि आ पासा नीवां है। तो भगत कबीर साहब जी कहते हैं कि सिख के जीवन के अंदर की जिहड़ी निमरता वो पानी वर्गी होवे, जिवें पानी हमेशा नीवें पासे नूं चलदा है, उस तरह सिख का जीवन वो निमरता दे नाल भरिया होना चाहिए। हुण जदों ये विचार भी मन दे विच आई तो इस तो अगे जाके फिर सोचिया, कहन लगे कि पानी दे वर्गी निमरता भी वो परमात्मा दे दास दे विच नहीं होनी चाहिए। क्यों? कहन लगे कबीर पानी हुआ तां क्या भया, सीरा ताता होए, हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। कहन लगे जेकर पानी वर्गी निमरता धारण कर लवे तो पानी दे विच भी एक सब तो वड्डा अवगुण है। पानी का अवगुण यह है कि जेकर सेक पै जाए, गर्मी पै जाए तो वह गर्म हो जाता है, जेकर ठंड पै जाए, ज़्यादा सर्दी हो जाए तो वह पानी जम जाता है। पानी दे विच ये सब तो वड्डा अवगुण है। जेकर सिख दे जीवन दे उपर किसी ने थोड़ा जिहा उसनूं गर्म बोल दिता तो यह ना होवे कि वह पानी दे वांगू जल्दी दे नाल गर्म हो जाए, तो जेकर किसी ने उसनूं पिछां जाण दे वास्ते आख्या तो इन्ना को ठंडा ना हो जाए कि चुप करके, जिवें सिद्धांत अजकल साडे संसार दे विच कईयां धर्मां दे सामने आउंदे, जिवें जैन धर्म की असीं गल करते हैं, बुद्ध धर्म की गल करते हैं। हुण उन्हां दा सिद्धांत है अहिंसा परमो धर्म। उन्हां दा सिद्धांत ये है कि जेकर तुहाडे मूँह दे उपर कोई एक चपेड़ मारदा तो तुसीं अपनी दूसरी गल उस दे अगे कर दिओ। पर सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी ने और धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने सानू ये सिद्धांत नहीं बख्शिश किया। कह लगे सिखा तेरे जीवन दे विच निमरता भी होनी बड़ी जरूरी है, शीतलता भी बड़ी जरूरी है। पर जेकर तेरे उपर धक्के नाल कोई वार कर देवे, जेकर तेरे उपर धक्के नाल कोई हमला करने की कोशिश करता है तो फिर उस दे वास्ते जफरनामे की बाणी के अंदर सतगुरु जी का पावन बचन वो भी सानू याद रखना चाहिए। चूंकार अजहमा हीलते दर गुजश्त, हलाल अस्त बुरदन बा शमशीर दस्त। कि जदों तुहाडे उपर कोई धक्के नाल हमला कर दिंदा है, उस हमले का जवाब देने वास्ते भी सिख नूं फिर तैयार रहना चाहिए। ऐ सिखा जिथे तू निमरता धारण करनी है उत्थे इन्नी निमरता भी धारण नहीं कर लैनी कि जिहड़ा मर्जी आण के तैनूं ठंड दे नाल जमा जावे। इस करके सिख दे जीवन का जिहड़ा रूप है, स्वरूप है, वो ऐसा होना चाहिए। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। जिमें वो हरि परमात्मा है उहो जी ऐ सिखा तेरे जीवन के अंदर निमरता होवे। सो ये गल्लां सानू उदों संगत जी समझ आउंदियां जदों असीं सतगुरु जी की पावन गुरबाणी दे नाल जुड़दे हां, जदों असीं खुद बाणी नूं पढ़ांगे। क्योंकि साडा जिहड़ा इह सिद्धांत है ना, कई वारी हुण संसार दे अंदर जो हालात ने अज असीं आखदे हां वेखो जी सिख धर्म नूं बड़ा वड्डा खतरा है, सिख धर्म वो जिहड़ा खत्म हुंदा जा रिहा। पर बाबे नानक दे वारसो ये धर्म कदे खत्म नहीं हो सकदा। इस धर्म की बुनियाद सिरां दे उपर रखी गई है। और जदों असीं इस धर्म के बारे वड्डे वड्डे विद्वानां ने इत्थों तक कह दिता सी, दिस मैटर इज़ ए क्वालिटी डज नॉट मैटर इज़ कंटिटी। असीं इस धर्म दे विच क्वालिटी वेखनी है जां कंटिटी वेखनी है, असीं गिणती वेखनी है जां गुण वेखने हैं। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी ने आनंदपुर साहिब के अंदर केसगढ़ के किले दे विच स्टेज के उपर चढ़ के ये नहीं सी आख्या कि सारे ही आ जाओ तो तुहानूं अमृत छका दईए। उन्होंने आख्या सी सानूं एक सेर की लोड़ है। चमकौर की गढ़ी दे विच 10 लाख फौजां सी पर नितरे केवल 40 सन। साडे धर्म नूं क्वालिटी की लोड़ है, कंटिटी की नहीं। इकट्ठ जिहड़े लखां दे इकट्ठ हो जाते हैं, पर धर्म नूं प्रेम स्वरूप मनण वाला जिहड़ा गुरु का सिख है ना, जिहड़ा बाबे नानक की बाणी का वारस है, वो कदे वास्ते बाबे नानक की बाणी नूं छड्ड के परां नहीं जांदा। परां वो जांदा है जिहड़ा पहलां ही टुटे है, जिहड़ा पहलां ही थिरके है। उसने अज बाबे नानक की बाणी के दर ते आण के मत्था भी टेक लिया, कल नूं उन्हें जाके किसी मंदिर दे विच तेल भी पा देना, परसों किसी कबर ते जाके रुमाल भी चढ़ाएगा, चौथे किसी चर्च दे विच जाके मोमबत्ती भी बाल आवेगा। सानू ऐसे पखंडियां दे धर्म की कोई जरूरत नहीं। ये क्वालिटी का धर्म है। बाबे नानक का सारी मनुखता नूं कलावे दे विच लैण वाला धर्म है। बाबे ने किसी नूं नहीं सी आख्या कि तुसीं साडे धर्म दे विच ना आओ। सारिआं नूं अपना थां थाई धर्म जिहड़ा वो कबूल है, प्रवान है, मन्नी जाओ।
पर किसी नूं किसी दे धर्म दे नालों जबरी तोड़ना, मजबूरी का फायदा लैके किसी नूं किसी दे धर्म दे नालों तोड़ना इस संसार दे विच सब तो वड्डा गुनाह है। इस करके असीं सुचेत होना है, बाणी दे नाल जुड़ीए, बाणी दे गुण अपने बच्चों के नाल साझे करिए, बाणी दी विचार जिहड़ी अपने परिवार दे नाल साझी करिए ताकि साडा परिवार बाणी दे नाल जुड़ सके और असीं बाणी दे नाल जुड़ के होरनां नूं भी बाणी दे नाल जोड़ सकीए। आखिरी बेनती कर देवां, आप जी दे नज़दीक पिंड मरगिंदपुरा जिथे 14 तरीक नूं दस्तार मुकाबला नौजवान वीरां दे वल्लों रखिया गया। 5 साल तो लैके 20 साल तक के जिहड़े बच्चे है बच्चियां ने वो दस्तार अते दुमाला मुकाबले दे विच भाग लै सकदे है। कोई भी बच्चा उस दे विच शामिल हो सकता है, भावें 5 साल तो लैके 20 साल तक का कोई लड़का है लड़की है। लड़कियां दा जिहड़ा वो दुमाले का कंपीटिशन होवेगा और लड़कियां दा जिहड़ा वो दस्तार का मुकाबला होवेगा। इस करके अपनियां दस्तारां, अपना शीशा, बाज, 50, पग पिन्ना, ये सारा समान अपना लेके ਐਤਵਾਰ वाले दिन पिंड मरगिंदपुरा विखे गुरुद्वारा शहीद सिंह उत्थे तुसीं 8:30 वजे पहुँच जाना है। 12 वजे तक समागम की समाप्ति हो जानी। ਜਿਹੜੇ बच्चे पोजीशन ते आउणगे उन्हां नूं सन्मान चिन्ह दिते जाणगे। बाकी भाग लैण वाले सारे विद्यार्थियों नूं वो मैडल दे के जिहड़ा वो सन्मानित किया जाएगा। इस करके ये भी साडे धर्म का एक सब तो वड्डा हिस्सा है। अपने नौजवान बच्चियां बच्चियां नूं दस्तारधारी, दुमाला धारी बनाइए ताकि उन्हां दे अंदर दस्तार के प्रति जिहड़ा है वो प्रेम पैदा हो सके, उन्हां नूं दस्तार की अहमियत का जिहड़ा वो पता लग सके। सो अपने बच्चियां नूं 14 तरीक नूं ऐतवार इस दस्तार कंपीटिशन दे विच मरगिंदपुरा पिंड दे विच 8:30 वजे तो लैके 12 वजे तक ये समागम हो रहे। उस दे विच भी आप जी ने वध तो वध शामिल होने की किरपालता करनी। सो अज दे इस पावन दीवान दे अंदर विचारां करदिआं बेअंत प्रकार दीआं भुल्लां हो जांदियां ने। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब गुरु की संगत बख्शण योग है जी। धन्नवाद प्रबंधक कमेटी का, ग्रंथी साहबान जी का, जिन्हां ने बेनती नूं प्रवान करके आप संगत के दरमियान गुरु की विचार कहण का जिहड़ा वो समा दिता। धन्नवाद सारियां संगतां दा। कोटान कोट शुक्र सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का। भुल्लां चुक्कां दी खिमा दिओ असीस। अंत करो गुरफतेह दी सांझ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।